Hi guys, welcome back to my channel. So it's me after a long time making videos again. So it took me a year to come back. I was busy with a lot of things. So I'm finally back and again it's a hair color video. So I will be, reviewing many products as well. I had plans to review many products. I have so many products, lipstick swatches to be done, but I got caught up in so many other things that I had to take a break from YouTube making videos. So now I'm back finally. I hope I continue making them. So let's start, and thank you so much for subscribing to my channel and being there while I was not making videos. I really hope I can continue making videos and some vlogs as well. Yes, I'll be doing that. So as you can see, this is a hair color video. Plus I'll be trimming my hair as well. So let's begin without any further more introduction. So some of you have been subscribed to my channel recently and I've noticed that I need to, kind of connect again with you guys. So hi, this is Smriti. So I am a physiotherapist and I am basically into skincare, hair care and lipstick swatches. So you will be seeing a lot of these on my channel and I have made various videos on my skin condition, that is I am still having seborrheic dermatitis, and what all things I have done and I'm still doing, I will be sharing that as well because I have new skincare and hair care routine. It keeps on changing with the weather or with the new products coming in. So I'll be making videos on that as well, and I'm also into hair coloring a lot, so you'll be seeing that as well. So let's begin. So I usually cut my hair on my own. It's basically a trim. At home, I'm not into layers. So just one length trim, that's it. So this trim was done by me, I guess 6 to 7 months ago. I have to do it again because the hair is all dead. As you can see in the ends, बिल्कुल झाड़ू से बन गए हैं, dry. Okay, so I had bleached my hair like a year ago and then I had used L'Oreal, casting gloss का जो color आता है 535 chocolate. So that time मैंने video नहीं बनाया था. I was like fine, I'll make a video someday. तो अब मैंने सोचा चलो am I returning back, so why not. So now I'll be doing a trim first and then hair color and then showing you the results. ओके, सो कास्टिंग क्रीम ग्लॉस में 3 शेड आते हैं चॉकलेट के, ठीक है. आइस चॉकलेट, चॉकलेट एंड देन डार्क चॉकलेट. या सो आई वांटेड समथिंग टू बी विजिबल ऑन माई हेयर. नहीं कि बस चॉकलेट के नाम पे बस मुझे एक डार्क सा ब्राउन नहीं चाहिए था. आई वांटेड समथिंग टू हाईलाइट. सो आई चोज चॉकलेट. आइस चॉकलेट इज अ बेसिक like a lighter version of chocolate color, so I don't want that light because I already have done light color. It's on my channel, I'll link the description below so you can check that out as well. Same casting gloss का ही range का है. So चलो शुरू करते हैं. So as you can see, this portion of my hair is black till here, right? So अभी इतना तो light है, इसको भी कलर करना है एंड विदाउट ब्लीच तो कलर चढ़ता नहीं है, राइट. सो इस वाले हेयर के लिए की ये खासियत है कि इसमें ब्लीच नहीं करना है बट इट हैज डेवलपर. सो दैट्स द ट्रिक. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डैमेज होगा बट इतना नहीं होगा जितना कि नॉर्मली दूसरे हेयर कलर्स में होता है, और ये टिक भी जाता है आराम से. आपका 3-4 महीने आराम से टिक जाएगा. चलो लेट्स बिगिन. कंघी तो मैंने कर ही ली है, अब करते हैं मूव ऑन हेयर कट की तरफ. So I'll make a middle parting and yep, हो गया. So the most basic thing to take care is अगर आपको हेयर कलर करना है तो एटलीस्ट शैम्पू के 2 या 3 बाद हेयर कलर करना, ताकि आपकी स्कैल्प जो है थोड़ा सा ऑयली हो जाए. नहीं तो अगर डायरेक्ट करोगे तो इट विल स्टिंग रियली बैड बिकॉज ऑब्वियसली इट डजंट हैव ब्लीच बट डेवलपर तो होता ही है और केमिकल्स तो आपके स्कैल्प में फिर डायरेक्टली लग जाते हैं. तो एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है अगर आप 2-3 दिन बाद करते हो शैम्पू के. दिस इज माई डे 3. सो आई विल टेक रबर बैंड्स एंड आई विल मेक सेक्शंस फर्स्ट. यूजुअली आई टेक माई कॉलर बोन, दैट इज हेयर, एज अ रेफरेंस पॉइंट, बट थोड़े बार लंबे हो गए पिछली बार से, तो I'm thinking not to cut too much because I want to,
let my hair grow this time just for the sake of coloring it, nothing else. चलो करते हैं. I'll make, I guess, 5 to 6 sessions. Okay, so I'm taking this much. I have a mirror right here, so I'll be seeing in that, because मुझे यहाँ से आइडिया नहीं लग पा रहा है कितना लेना है. ऊपर नीचे हो जाएगा. So you can just see how am I taking sections. So this is my collarbone right here. So थोड़ा सा, इतना तो छोटा नहीं करना है मेरे को. 1 inch I'll just chop off and just try to hold it as tight as possible and secure it with the rubber band. मुंडी सीधी रखनी है, ऊपर नीचे जाएगा तो फिर पूरा लेवल बिगड़ जाएगा. Okay, so I made my first section. इतना काफ़ी रहेगा आई थिंक. मुझे ज़्यादा नहीं काटने बाल. 6-7 महीने हो गए तो आई थिंक this much should be fine. Because already मेरे बाल ऊपर नीचे हो रखे हैं. चलो then move on to the next. I think I'll take some more hair. एंड आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको ओके यहाँ काटना है बाल. अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी रबर बैंड. अगर बाद में थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो मैनुअली यू कैन एडजस्ट, नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट थोड़ा सिमिलर हो. ये नहीं कि ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए. ओके, ये कर दिया. ठीक है, एक लाइन में थोड़ा बहुत आ रहे हैं. अब जल्दी जल्दी करते हैं सारे सेक्शन अलाइन. Take this. तो मैंने बना लिए हैं 4 छोटी छोटी एंड आई थिंक थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट. ये बस मैं करती हूँ बिकॉज आई थिंक एक सेव्स मनी एंड देन सेकेंडली मुझे बार बार आई डोंट हैव टू जस्ट गो थ्रू द ट्रबल कि सैलून जाओ और फिर वहाँ वेट करो और फिर कटिंग कराओ. एंड देन I mean it's simple straight cut, so why not? I just find this convenient. And if you're not into it, then please go to professional stylist. And this works for my curly hashtag. This works for my curly wavy hair as well because थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, इतना पता नहीं लगता. तो ये साइड का बन चुका है. मैं इतना सारा नहीं काटने वाली हूँ, रबर बैंड से थोड़ा सा नीचे काटूंगी एंड जस्ट विल सी कि कितना सेक्शन और थोड़ा सा लगता है कि हाँ डेड एंड्स हैं तो आई विल प्रोसीड फर्दर अप. अब इस साइड का कर लेते हैं. मुझे इस साइड से मैच करना पड़ेगा. यहाँ पे ज्यादा डेड एंड्स है एज कंपेयर टू द बैक साइड. Okay, so I have done this. थोड़े से अंदाजे से किया है. ये वाला ज्यादा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया. इसको थोड़ा ठीक करती हूँ मैं, तो ज्यादा बाल कट जाएंगे. थोड़ा सा इसको ना रबर बैंड को हल्का से नीचे कर लेती हूँ. बाल तो आंखों में जा रहे हैं. ओके, ठीक है, इतना काफी है. आई थिंक सेम लग रहा है. ना ऊपर कर दिया मैंने. ओके,
ठीक है, अब अगर ज़्यादा मुझे लगेगा तो उसी टाइम आई चॉप ऑफ। अभी तो बहुत ऊपर कर दिया मैंने ये वाला भी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। If you are into fancy haircuts, then you should go and watch Brad Mondo की videos. वहाँ पे आपको बहुत तरीके की haircuts, and he's a professional stylist. तो for a reference point, you can watch those videos. बटरफ्लाई हेयर कट एंड लेयर हेयर कट, पता नहीं कौन कौन से नए नए हेयर कट्स आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे देख सकते हो। ये तो सिंपल सा कट है बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस एक सिंपल स्ट्रेट काटना है। चलो लेट्स बिगिन नाउ। आई एम जस्ट स्टेरिलाइजिंग माई सीजर बिकॉज ये जो है वी जस्ट कट पेपर एंड स्टफ आउट ऑफ दिस। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि साफ हो अच्छे से। और ये नॉर्मल सीजर, इट्स नॉट हेयर कटिंग सीजर। मुझे बेटर होता मैं वही ले लेती, बट 7-8 महीने से ऊपर हो चुके हैं और बालों की हालत ऐसी हो गई है, तो आई वाज लाइक चलो भाई हेयर कट करो, काम खत्म करो, एंड देन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि आई हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल सीजर। सो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अच्छा एक लुक भी आता है, कट अच्छा आता है उसमें, एंड जो बालों के एंड्स होते हैं ना अच्छे से कट हो जाते हैं, तो स्प्लिट एंड्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं वहाँ पे। बेसिकली फिनिशिंग अच्छी आती है। आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ बाल छोटे हैं, तो आई मीन ये जो सेक्शन है ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, अलाइंड लग रहा है सारे बैंड्स एक साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो पहले मैं ये काट लेती हूँ, उसके बाद ये देखती हूँ। तो आँखों में बाल जा रहे हैं यार। चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे टॉट पकड़ूंगी, एंड देन यहाँ से रबर बैंड के नीचे से आई कट ये, ओके। ये फाइनली मैं बाल मोस्टली ड्राई ही काटती हूँ, रीज़न बीइंग बिकॉज आई हैव कर्ली वेवी हेयर। तो अगर मैं वेट में काटूंगी तो मुझे समझ नहीं आता है, वो फिर ड्राई होके और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि इसका मुझे लेंथ एग्जैक्ट पता रहता है कि अच्छा मैंने अगर यहाँ तक काटा तो यहीं तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है ज़्यादा। एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर कटिंग योर ओन हेयर। चलो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, थोड़ा नीचे करते हैं उसको हल्का सा। लास्ट, अच्छा और भी है। डन। मुझे पक्का पता है, मैंने ना ऊपर नीचे कर किया होगा, पक्की बात है। चलो कोई बात नहीं, अब इस तरफ आते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसको काटना था, ओके। तो मैं अब इसको देखूंगी, ये थोड़ा सा मुझे सिमिलर ही लग रहा है, तो चलो काट देते हैं इसको, बाद में देखी जाएगी जो होगा। हेयर कट हो चुका है, और अब देखी जाएगी बाल कितने छोटे हैं, बाल कितने लंबे, लेवल कितना क्या हो चुका है अभी। बट ठीक है, एटलीस्ट आई हैव अ फ्रेशर
लुक, और एक तरीके से नीचे के डेड एंड्स जो थे वो सारे निकल गए हैं, जो कि मैं चाहती थी। 7-8 महीने हो गए थे, एंड आई वांटेड टू फिल्म दिस वीडियो बिकॉज आई वाज वेटिंग कि ठीक है मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, देन आई विल फिल्म। पहले भी मैंने हेयर कट किया हुआ है अपने अभी, बट दैट टाइम आई डिड नॉट फिल्म। तो दिस टाइम आई वांटेड कि नहीं यार मुझे फिल्म करना है, इसको वीडियो बनानी है, देन आई हैव टू पोस्ट इट। सो देन आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, सो दिस इज माई हेयर। ठीक है, इतना तो बनता है 7-8 महीने के बाद, क्योंकि सारे के सारे बाल ना नीचे से पूरे डेड हो गए थे। सी दिस। चलो नाउ अब हेयर कलर करना है, अब एक अगला टास्क। लेट मी कीप दिस असाइड। मतलब आई थिंक मैंने 1 इंच ज़्यादा ही काट दिया है, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट मेरे जो डेड बाल थे वो निकल गए। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द रबर बैंड्स वन बाय वन। I hate this section. My hair feels lighter, bro. It's like मजा ही आ गया। See? बाल में जान आ जाती है हेयर कट के बाद ना, कि भाई ठीक यहाँ तक थे बाल, अब मैंने इतना काटा है तो ठीक है, समझ में आता है, इतना तो कटना बनता है। हो गए थे 7-8 महीने। चलो अब इस सेक्शन को खोलती हूँ मैं। ओके, मुझे पक्का पता है सब ऊपर नीचे हुआ होगा मेरा, कि पहले मैंने शीशे के सामने काटे थे अपने बाल, एंड नाउ आई हैव लिटरली डन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे होगा। लेट मी सी, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आई जस्ट रेक्टिफाई। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब मुझे पीछे मुड़ने में डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है ऊपर नीचे होना ही होना है। पहले भी हुआ था, बट देन यू नो I just took help of my mom and she just gave a cut, straight cut. So दिखाती हूँ कैसा लगता है पीछे से, अब कर ही लिया तो। ये मेरे बाल हैं, एंड अब मैं बाद में इसको सेट करवाऊंगी उनसे, अभी तो मुझे हेयर कलर करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे ये वाला जो सेक्शन है ये इतना नीचे आ रहा है, तो इसको मुझे मैनुअली ट्रिम करना पड़ेगा। सी, अलग से नीचे आ रहा है ये, तो ये मैं यहाँ से काट देती हूँ थोड़ा सा। ओके ठीक है, इतना काट दिया। एटलीस्ट थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा नहीं है देखने में। तो बहुत लोगों का सवाल होता है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है कि आपके कर्ली और वेवी हेयर है तो कौन सा हेयर कट कराए। ओके, सो आई हैव डन लेयर्ड हेयर कट एंड आई हैव दिस वन लेंथ स्ट्रेट हेयर कट। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब मैं ऐसे वन लेंथ स्ट्रेट हेयर कट कराती हूँ तो मुझे एक तो वॉल्यूम मिल जाता है। मैंने पहले लेयर हेयर कट कराया हुआ है, मतलब यहाँ तक कराए थे लेयर्स, अंदर नीचे ऐसे लेयर्स, नो लाइट लेयर्स, बट उसमें भी मुझे ये देखने को मिला था कि यहाँ तक कर्ल्स होते हैं, फिर नीचे आते आते वो कर्ल्स नहीं फॉर्म होते हैं, एकदम ऐसे स्ट्रिंजी से हो जाते हैं। तो वाज लाइक नहीं यार वो नहीं चाहिए मुझे, एक तरीके से यूनिफॉर्म हो जाता है तो ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा वॉल्यूम दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप वन लेंथ हेयर कट कराते हो तो इतना बाउंस नहीं होता वॉल्यूम, ऑब्वियसली यू डोंट हैव लेयर्स लोग इसीलिए कराते हैं थोड़ा वॉल्यूम के लिए। बट आई एम लाइक ठीक है, मुझे ये वाला ज़्यादा सूट करता है, एंड इन फ्यूचर अगर मुझे लगा तो मैं करा दूंगी। चलो अब मूव ऑन करते हैं हेयर कलर की तरफ।